Good morning, students. Welcome back. Now we are continuing our topic social justice, that is related to justice. In last videos we have studied about meaning of justice, how justice word have to be originate, and next videos we have studied about justice in ancient context. Ancient context में हमने justice के बारे में रीडिंग किया और we have also studied about the meaning of justice in China according to Confucius thinking. And in next part we have discussion about justice. That theory was given by Plato in his famous book The Republic. Last videos we have studied, and next we are also talking about justice. Ancient time we have here use a flow chart to explain the meaning of justice in ancient time और in modern time. एंशियंट टाइम जस्टिस प्रोवाइड करने का काम होता था जो वो किंग के द्वारा किया जाता था, बट इन मॉडर्न टाइम इट इज डन बाय द जुडिशरी एंड वी हैव नो दैट द जुडिशरी सिस्टम from figure first, judiciary, supreme court, high court, district court we have study about, and now we are next topic study about the what are the main principles of justice. Principles, there are three principles of justice that we have studied in detail. Generally अगर हम बात करें equal treatment with all, that is called justice, यानी कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, अच्छा व्यवहार करना ही जस्टिस कहलाता है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन के, दैट इज कॉल्ड जस्टिस. वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोशल जस्टिस. मैंने कहा था कि लास्ट वीडियोस में जब भी हम जस्टिस का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो देयर इज ए फेमस नेम दैट इज रिलेटेड टू जॉन रोल. जॉन रोल थ्योरी. तो जॉन रोल ने भी अपना एक सिद्धांत दिया है रिलेटेड टू सोशल जस्टिस. तो इन दिस वीडियोज वी आर studying about John Rawls theory about social justice. That is most important theory, that is most important question. So student, listen carefully and be attentive. That is a John Rawls theory. Now we are studying about the John Rawls theory. I have given heading John Rawls theory of social justice. यानी कि जो social justice है, as you know that we are living in a society and there is also different type of people live, so there is no social discrimination on the basis of language, gender, caste, religion. John Rawls is also a political thinker who has given a theory related to social justice. That is very famous theory. और John Rawls is a famous philosopher और a political thinker. So John Rawls, जब भी हम जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं तो जॉन रोल का हमेशा नाम आता है उसमें. तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे कि जॉन रोल ने क्या कहा सोशल जस्टिस थ्योरी के बारे में. He said people will prefer a society in which rulers and organization of society allowed them privileges position. कहते कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जो समाज में रहता है कि जो रूलर्स है यानी कि जो राजा है, ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी का, allowed them privileged position, कि समाज उनको एक विशेष अधिकार प्रदान करे. प्रिविलेज पोजीशन का मतलब होता है एक विशेष अधिकार प्रदान करना, यानी कि एक स्पेशल दर्जा प्रदान करना. कोई भी व्यक्ति है उसकी इच्छा यही रहती है कि जिस समाज में वो रहता है वो समाज और वो सरकार या वो रूलर उसको एक विशेष अधिकार प्रदान करे, विशेष अधिकार प्रदान करे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसको प्रिविलेजेस मिले. जॉन रोल आर्ग्यूज दैट द ओनली वे वी कैन अराइव एट फेयर एंड जस्ट रूल एज इफ वी इग्नोर आवरसेल्फ टू बी in situation in which we have make decision about how society should be organized, although we do not know which position we would ourselves occupy in that society. देखिए कितनी अच्छी बात कही जॉन रोल ने. प्रत्येक व्यक्ति उम्मीद तो ये करता कि भाई उसको प्रिविलेजेस मिले, बट जॉन रोल आर्ग्यूज दैट, लेकिन जॉन रोल ने अपना तर्क दिया है दैट द ओनली वे वी कैन अराइव एट फेयर एंड जस्ट rulers as if we imagine ourselves to in situation in which we have to make decision about how society should be organized. उन्होंने कहा कि लेकिन फेयर एंड जस्ट, फेयर और जस्ट कब आएगा रूल में? एज इफ वी इमेजिन ourselves to be a situation in which we have make decision, यानी कि हम लोग जब ये इमेजिनेशन करते हैं कि हम किस सिचुएशन में यानी कि डिसीजन दे पाते हैं अबाउट हाउ सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज, यानी कि हमारा जो समाज होता है वो कैसे गठित होता है. आल्दो वी डू नॉट सो विच पोजीशन वी वुड आवरसेल्फ ऑक्यूपाई इन दैट सोसाइटी, हमें ये नहीं सोचनी चाहिए कि हमें समाज में
क्या पोजीशन मिले। कहने का मतलब क्या है कि जनरली तो हम देखें तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसको समाज में रहते हुए प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, बट जॉन रोल ने ये अपना तर्क दिया है कि यदि हम अच्छा करना चाहते हैं, यदि समाज में हम लोग न्याय स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हमें यानी कि किसी प्रकार के विशेष अधिकार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए सबके साथ, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यही जो थ्योरी थी, मेन जो थ्योरी थी, वो थ्योरी ही कहलाती है सोशल जस्टिस। देखिए जनरली तो हम चाहते हैं, हर वर्ग चाहता है कि उसको विशेष अधिकार मिले ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके अच्छे से, लेकिन जॉन रोल ने तो ये कहा कि इस चीज को आपको इग्नोर करना होगा कि आपको प्रिविलेजेस मिले, तभी एक अच्छा समाज बन पाएगा, तभी समाज में सभी लोगों को एक तरह से जस्टिस मिल पाएगा। ही डिस्क्राइब दिस एज थिंकिंग अंडर वेल ऑफ इग्नोरेंस। कहते कि उन्होंने तो वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। वेल ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये होता है, इग्नोरेंस का मतलब अनदेखा करना, यानी कि समाज में हमें ये नहीं मानना है कि हमें विशेष अधिकार मिले, बल्कि हमें तो उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है और पूरे समाज का हित करना है, और पूरे समाज का हित करना ही सोशल जस्टिस कहलाता है। सभी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बराबर के इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना, एक जैसा व्यवहार करना। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इग्नोर करना है हमें, किसको इग्नोर करना है, प्रिविलेजेस को इग्नोर करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमें विशेष अधिकार मिले, बल्कि जॉन रोल तो ये चाहते हैं कि हमें इन चीजों को छोड़कर एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां पे सभी व्यक्तियों को जस्टिस मिले और एक तरह से सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। इसी थ्योरी को नाम दिया जॉन रोल ने, जॉन रोल थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट क्वेश्चन आल्सो पुट इन द नेम ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस के नाम से भी थ्योरी आ जाती है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, या 1 मार्क्स में आती है, हु हैज गिवन द वेल ऑफ इग्नोरेंस थ्योरी। तो जॉन रोल्स ने दी थी थ्योरी, यानी कि अनदेखा करें, अनदेखे पर्दे का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन की यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर जस्टिस का मीनिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर जी ने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है। बी आर अम्बेडकर की डेफिनेशन के बारे में हम अगर जनरली बात करें, ए जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ reverence and descending sense of contempt in dissolve in creation of a compassionate society। कहते हैं कि एक समाज, एक ऐसा समाज जिसमें ascending sense of reverence and डिसेंडिंग सेंस ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने की या दूसरों से बदला लेने की जो सेंस है वो कम हो जाए, बल्कि उसके स्थान पर एक कंपैशनेट सोसाइटी, यानी कि एक समाज मिति, एक अच्छा समाज बने। ऐसे समाज को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे समाज को ही हम नाम देते हैं सोशल जस्टिस का। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जॉन रोल थ्योरी, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक।